ایک لڑکی کی وفا کی ایسی کہانی جس کو مرد اور جن میں سے کسی ایک کی محبت کو چننا پڑا۔ سردی کی آمد تھی، ہر طرف ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ لہلہاتے پیڑ پودے ماحول کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ہر طرف دھند پھیلتی جا رہی تھی، آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس ارد گرد کے دلکش نظاروں کی خوبصورتی کو اپنی نظروں میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ اس کو قدرتی مناظر سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہ نظارے بالکل اس کی ہی طرح حسین تھے۔ اپنی سونی سی رنگت کے اثر سے وہ بے خبر تھی۔ اپنی معصومیت کی کشش سے وہ چلتی چلتی اپنے گھر والوں سے کافی دور نکل آئی تھی۔ جس کا اس کو ابھی تک اندازہ نہ ہوا تھا، وہ تو بس ان دل نشین نظاروں میں کھوئی تھی، مگر وہاں کوئی اور تھا جس کو پاکیزہ کے وجود کی مہک نے اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا تھا، جو اسے اپنی نگاہوں کی قید میں رکھے ایک گھنے عمر رسیدہ نہایت ہیبت ناک قسم کے درخت پر براجمان تھا۔ پاکیزہ اپنی بائیں پھیلا کر دائرے کی صورت میں گھومی۔ اسی دوران ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور پاکیزہ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کو اڑا کر دور پھینک دی، جس سے پاکیزہ کے لمبے گھنے سیاہ بال کھل کر فضا میں بکھر گئے۔ یہ منظر دیکھا تو وہ پاگل سا ہونے لگا۔ پاکیزہ کی زلف اس کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ مسکرا اٹھا۔ پاکیزہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنی چادر کو اٹھا کر ایک بار پھر اپنے وجود کو اس کی مدد سے ڈھانپ لی۔ امی، یہ پاکیزہ کہاں گئی؟ ادیبہ پاکیزہ کو سب کے بیچ نہ پا کر اچانک رکتی ہوئی بولی تھی، جو پاکیزہ کی چڑچڑی بہن تھی۔ پاکیزہ کے والدین نہ تھے، تبھی وہ اپنی چاچا چاچی اور ان کی دو بیٹیوں ادیبہ اور لائبہ کے ہمراہ انہی کے گھر رہتی تھی۔ ہاں، یہ پاکیزہ کدھر ہے؟ لائبہ بھی فکر مند ہوئی۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نہ ہمیشہ پریشانی کرتی ہے، جب پتہ ہے کہ نئی جگہ ہے تو ذرا ہوش سے رہ لو، مگر نہیں۔ پاکیزہ کی چاچی بولی۔ ان کے لہجے میں حسب عادت پاکیزہ کے لیے نفرت شامل تھی۔ ارے بھابھی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنے کا ہے۔ اس طرف سارا جنگل اور اندھیرا ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، بچی کو تلاش کرو سب۔ عاطف، تم اس طرف دیکھو، وہاں نہ نکل گئی ہو۔ جمیل، تو ادھر دیکھ، میں بھی دیکھتا ہوں، اور جب تک ہم نہیں آ جاتے کوئی نہ ہلے یہاں سے۔ پاکیزہ کے چھوٹے چاچا بولے تھے، جو یہی یعنی کہ گلگت بلتستان کے ہی رہنے والے تھے، اور پاکیزہ لوگ ان سے ملنے کراچی شہر سے گلگت آئے ہوئے تھے۔ جب سب اکٹھے ہوئے تو تبھی سب نے ذرا گھومنے پھرنے کا پلان بھی بنا لیا، اور آج وہ سارے کے سارے اسی غرض سے یہاں آئے تھے، مگر پاکیزہ انجانے میں ان سے بچھڑ گئی۔ آس پاس سے بے خبر وہ اب چشمے کی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پاکیزہ کا پیر پھسلا اور وہ سیدھا بہتے ہوئے چشمے میں جا گری۔ پھسلن اور بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بہتی چلے گئی۔ آس پاس کوئی بشر نہ تھا جو اس کی پکار سنتا اور اس کو بچانے آ سکتا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً درخت پر سے اترا اور تیزی سے چشمے کے نزدیک آ کر اس میں کود گیا۔ بڑی جدوجہد کے بعد اس نے بالآخر پاکیزہ کی جان بچا ہی لی اور اب اس کو لیے چشمے سے باہر نکال لایا۔ پانی پاکیزہ کی سانس کی نالی میں چلا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، مگر پاکیزہ کسی کو بھی کہیں نہ ملی تھی۔ سب اپنا سر پکڑے فکر مند بیٹھے تھے۔ سب کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، مگر پاکیزہ کی چاچی دل ہی دل میں بے حد خوش تھی کہ اسی بہانے ان کی پاکیزہ سے جان چھٹ گئی۔ بچپن سے ہی وہ اپنی چاچی کی آنکھ میں کھٹکتی رہی، جس کی وجہ تھی اس کا رنگ روپ، کیونکہ طوبہ اور لائبہ دونوں ہی صورت کی بہت معمولی تھیں۔ جو بھی ان تینوں کو ساتھ دیکھتا تو پاکیزہ کی ہی تعریف کرتا، اور یہ بات نہ تو ان دونوں بہنوں سے برداشت تھی اور نہ ہی ان کی ماں سے، جبکہ پاکیزہ کا دھیان ان باتوں کی جانب بالکل نہ تھا اور نہ ہی اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا۔ اس کی تو بس یہی کوشش ہوتی کہ وہ سب ہنسی خوشی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ وہ سب پاکیزہ کو لے کر ہی بات کر رہے تھے کہ وہاں ایک نوجوان پاکیزہ کو اپنی گود میں اٹھائے ان کے نزدیک آیا تھا۔ وہ دراز قامت کا ایک گڑیل جوان تھا، تیکھے نقش اور چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ اس نے بنا کچھ بولے پاکیزہ کو سامنے بچھی دری جو ان لوگوں نے بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھانے کے لیے بچھا رکھی تھی پر نہایت احتیاط سے لٹا دیا۔ اس نے پاکیزہ کو اس نرمی سے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ کوئی موم کی بنی گڑیا ہو۔ اس نے جوان کو دیکھا تو لائبہ سمیت وہاں موجود تمام لڑکیوں کی نظر اسی پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی، مگر اس نے کسی کی طرف نگاہ
उठाने की भी जहमत न की। पाकिज़ा को इस खूबरू की बाहों में देखकर अरीबा को अजीब सी जलन महसूस होने लगी। इसकी मौजूदगी से माहौल में अजीब सा भारीपन फैल गया था और इसके वजूद से एक मुनफरद किस्म की मगर बहुत ही सहर अंगेज खुशबू घूर रही थी। अंधेरा फैल चुका था और कुत्तों समेत अजीब व गरीब जानवरों की आवाज़ें इधर उधर से आने लगी थी। पाकिज़ा को दरी पर लिटाता वो नौजवान जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो पाकिज़ा के चाचा वगैरह आगे बढ़कर इसका शुक्रिया अदा करने लगे और इसके बाद इस शख्स का तारुफ पूछने लगे, मगर वो उनको और उनकी बातों को ऐसे नज़रअंदाज कर गया जैसे वो लोग यहाँ मौजूद ही ना हो। वो एक लफ्ज़ भी ना बोला और वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ गया। इसके अजीब तरह के रवैये पर सब हैरान तो हुए कि आखिर ये था कौन और पाकिज़ा इसको कहाँ से मिली। इसको कैसे मालूम था कि वो हमारे ही साथ थी। सबके जहनों में कुछ सवाल उठे थे, मगर फिर इन बातों को नज़रअंदाज करते वो लोग पाकिज़ा की तरफ बढ़े और उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे। उन लोगों को घर आए काफ़ी देर हो चुकी थी। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। पाकिज़ा भी अपनी ख्वाबगाह में आ गई। वो तब से घर आई थी। इसकी तबीयत ख़राब थी। एक अजीब सा बोझ वो अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वो आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेट गई। रात का दूसरा पहर था। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बाकी के तमाम घर वाले नींद के मज़े लूट रहे थे, लेकिन पाकिज़ा की आंखों से नींद कोसों मील दूर थी। अब तो उसके सर में भी बाकायदा दर्द शुरू हो गया था। उठकर बैठ गई। फिर अचानक ही पता नहीं उसको क्या हुआ, बेख्तियार अपनी जगह से उठती वो मेज़ के सामने आ बैठी। आईने से उसको बेतहाशा कशिश महसूस होने लगी। आईने में देखते देखते वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और अपने बालों को क्लिप की कैद से आज़ाद कर दिया। फिर सामने पड़ी लिपस्टिक को उठाए अपने होठों पर लगाने लगी। लिपस्टिक लगाने के बाद खुद पर इश्तियाक नज़र देख कर जैसे इसे खुद पर कोई इख्तियार ही ना रहा हो। उस वक्त जो कुछ भी वो कर रही थी वो सब कुछ पाकिज़ा खुद नहीं कर रही थी, बल्कि कोई और था जो इस पर काबू पाकर इससे ये सब करवा रहा था। काफ़ी देर वो लिपस्टिक होठों पर सजाई यूं ही बैठी खुद को तकती रही। फिर जैसे ही वो होश में आई और अपने होठों पर लाली और अपनी खुली जुल्फों को देखा तो हैरान रह गई। ये सब मैं क्या कर रही हूँ, वो भी रात के इस वक्त। ये सोचते पाकिज़ा ने घड़ी पर नज़र दौड़ाई जो इस वक्त 3 बजे आ रही थी। पाकिज़ा के सर के साथ अब पूरे बदन में भी शदीद दर्द होने लगा था। पूरे कमरे में एक मुनफरिद और उम्दा खुशबू फैली हुई थी। पाकिज़ा समझ ना पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। इसकी तबीयत मज़ीद भारी होती जा रही थी। वो अपने बाल बांधती पलंग की तरफ बढ़ी और लिहाफ में मुंह छुपाए लेट गई। फिर ना जाने कब इसकी आँख लग गई। उठ जाओ यार, उठना नहीं है क्या आज? लाइबा की आवाज़ पाकिज़ा की समातों से टकराई तो पाकिज़ा की आंख खुल गई। हाँ उठ गई हूँ। अब वो पलंग पर से उठती गुस्ल खाने की तरफ बढ़ने लगी कि पीछे से लाइबा ने इसको मुखातिब किया। बात तो सुन लो मेरी पाकिज़ा, बताया हम बाज़ार जा रहे हैं, मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। वो चहक कर बोली और बाज़ार जाने का सुनकर पाकिज़ा भी खुश हुई थी। कब तक जाना है और कौन जा रहा है? बस अभी तैयार हो जाओ, चल रहे हैं। तुम, मैं, अरीबा, सूफिया और चाची। अम्मी घर पर ही रहेंगी, सिर्फ लेडीज़ जा रही हैं। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आई। पाकिज़ा बोली और गुस्ल खाने में घुस गई। वो लोग बाज़ार घूमते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी करने में मसरूफ़ थे। गर्स जिसको जो चीज़ पसंद आती वो लेता जा रहा था। ऐसे में पाकिज़ा एक चूड़ी वाली दुकान के सामने रुक गई। चूड़ियों में इसकी जान बसती थी। चूड़ियाँ इसको बचपन से ही बहुत पसंद थी। सूफिया, वो देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं। पाकिज़ा अंदर सजी चूड़ियों की तरफ इशारा करके खुशी से बोली। हाँ यार, बहुत प्यारी हैं। पाकिज़ा और सूफिया चूड़ियाँ खरीदने की गर्ज से दुकान में दाखिल हुई और चूड़ियाँ देखने लगी। बाकी सब इधर उधर अपनी मनपसंद ख़रीदारी में मगन थे। पाकिज़ा और सूफिया साथ चल रही थी, तभी यहाँ भी वही दोनों साथ आ गई थी। सभी इतनी प्यारी हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लूँ। तुम बताओ ना, मेरे हाथों में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगेंगी, कौन सी लूँ? पाकिज़ा अपनी नज़र चूड़ियों पर से हटाए बिना बोली। सुर्ख वाली। किसी ने बेहद करीब होकर पाकिज़ा के कान में सरगोशी की थी कि इसके लहजे में मोहब्बत साफ महसूस की जा सकती थी। पाकिज़ा ने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई ना था और सूफिया भी ज़रा फासले पर खड़ी थी, अपने लिए चूड़ियाँ पसंद कर रही थी। पाकिज़ा को आसपास से वही रात वाली महक आने लगी। इसकी पूरी जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसको दिन के वक्त भी बेहद खौफ महसूस होने लगा था। वो तेज़ी से चलती सूफिया के नज़दीक आई और उसको बाजू से पकड़े
तेज़ी से दुकान से निकली गई। अरे क्या हुआ, तुमने लेनी नहीं चूड़ी? सूफिया ने सवाल किया। वो खुद ले चुकी थी। नहीं चलो, सबके साथ साथ ही रहते हैं। पाकिज़ा बेहद खौफज़दा हो गई थी। अब तो मैं सोच रही हूँ कि पाकिज़ा का फ़र्ज़ अदा कर दूँ। पढ़ तो चुकी है और घर बैठे बैठे करना भी क्या है। इससे बेहतर होगा कि वो अपने घर की हो जाए। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। हैं, अचानक एक पाकिज़ा की शादी का ख्याल किधर से आ गया आपको भाभी? आपको तो पहले लाइबा और अरीबा की फ़िक्र करनी चाहिए। वो तो पाकिज़ा से बड़ी है ना। आपदा यानी पाकिज़ा की पप्पो बोली। तीनों में 1 साल का ही तो फ़र्क है। बस मेरी लाइबा 24, अरीबा 23 और पाकिज़ा 22 की हैं। कौन सा कोई 10 साल का फ़र्क है। और वैसे भी अगर तुम्हें इतना ही ख्याल है तो अपने साथ अपने घर क्यों नहीं ले जाती इस मनूस को। मैं तो वैसे ही बड़ी बेजार हो गई हूँ। पाकिज़ा की चाची ने मुंह से जहर उगला और इनकी बात पर आपदा बात को इधर उधर गोल मोल करने की कोशिश करने लगी। कोई भी पाकिज़ा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ना था। किसी को भी अपने मरहूम भाई की इस अमानत की ना तो सच्ची फिक्र थी और ना ही कोई परवाह। हाँ, वैसे अच्छा ही सोचा आपने भाभी। अब बचपन से आप ही संभालती आ रहे हैं। इसका तो फैसला लेने का हक भी आपको है। वैसे भी कौन आजकल संभालता है किसी की औलाद को। ये तो आपका ज़र्फ है भाभी, जो बिन माँ की बच्ची को आपने सगी माँ बनकर पाला है। और हाँ, कोई अच्छा लड़का मैं भी नज़र में रखना शुरू कर दूँगी। कोई पसंद आया तो ज़रूर बताऊँगी। अरीबा ने जब से इस नौजवान को देखा था जो पाकिज़ा को चश्मे से निकाल कर लाया था, तब से ही वो अरीबा की हवासों पर सवार था। आज से पहले कभी भी अरीबा के दिल तक कोई ना गया था। इसके दिल पर दस्तक देने वाला वो पहला शख्स था। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर चाय पी रही थी। मौसम आज भी नहायत खुशगवार हो रहा था। फलक मुख्तारी घटाओं पर आज था और अरीबा के दिलो दिमाग पर उस अजनबी का पहले ही नज़र में अपना दिल बेख्तियार इसके हवाले कर बैठी थी। अरीबा ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला तो बारिश की पहली बूंद इसकी हथेली पर आकर गिरी और इसी के साथ बादल करीदार आवाज़ से कर गया। इस ठंडी बूंद के पड़ते ही अरीबा के अंदर की आंख मजीद भड़क गई। वो मुस्कुरा उठी और चाय का मग वहीं पास पड़ी मेज़ पर रखी पैर में बिना जूते डाले ही वो दौड़ती हुई छत की तरफ जाते जीने पर चढ़ने लगी। इसके पैर में पायल थी जो सीढ़ी पर पड़ते ही एक कदम के साथ साथ बज रही थी। बारिश बहुत तेज़ी से बरसने लगी। अरीबा पूरी तरह भीग चुकी थी और भीगने की वजह से आँख का काजल भी फैल चुका था और फैल जाने के बाद इसका काजल मज़ीद पुरकशिश लगने लगा था। वो आंखें बंद किए बारिश की बरसी हर बूंद के संग उस अजनबी को ही महसूस करने लगी। कहाँ हो तुम मेरे शहजादे? मेरा दिल चुरा कर अब खुद कहाँ छुपे हो? जानते हो तुम्हारी इस एक झलक ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। अरीबा छत के बीचों बीच खड़ी थी। काश इस जालिम मौसम में तुम मेरी तन्हाई के साथी हो जाओ। काश इस पल कहीं से भी आकर तुम मुझे अपनी बाहों में जकड़ कर इस ठंडे सावन में चलने से मुझे बचा लो। उम्र भर के लिए अरीबा तुम्हारी गुलाम बनने को भी तैयार हो जाएगी। कैसे सहूँ तुम्हारी जुदाई और ये बेरहम मौसम, मगर तुम तो जानती भी नहीं कि कोई लड़की तुम्हारी याद में कितना तड़प रही है। वो मुस्कुराते हुए खुद से गुफ्तगू कर रहा था। फिर अरीबा ने उस नौजवान को तस्वर करते हुए अपना हाथ चेहरे पर ले जाते हुए अपने बदन पर फेरा, फिर अपने गीले बाल एक अदा से झटके जो इस गदास गालों को छू गए थे। देखो, तुम सच्ची तो मेरी जुल्फ है जो मुझे छूती तो है, और एक तुम हो जिसको मेरी तड़प की कोई परवाह ही नहीं। अरीबा तो जैसे पागल ही हो चुकी थी। अब इसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर अपनी बाहें फैलाई, एक गोल चक्कर काटा। और तुम सावन, तुम भी मुझे इसके साथ शरीक लगते हो जो मुझे तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बारिश की बूंद अब इसके चेहरे पर भी पड़ी थी। उनको महसूस करके अरीबा को गुदगुदी सी हुई तो वो इस एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी और अब धीरे धीरे से चलती हुई वहाँ मौजूद बेंच पर आ लेटी। हाय काश तुम कहीं से आ जाओ, तुम्हारे बिना ये बरसात किसी काम की नहीं। उसकी नज़रों के सामने मुसलसल उस अजनबी का चेहरा घूम रहा था। वो आंखें बंद किए उसको तसव्वुर करने लगी और साथ ही वो अपनी सोचों में गर्क थी तो उसको किसी की आहट महसूस हुई।